Good morning students. Welcome back to online sessions of Science Class 10. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I request you just avoid to go outside your homes if unnecessary. If there is a necessary work then you have to use the protective face of mask covers, use always the sanitizers, always wash your hands within a specific time of interval within 20 seconds if you are in a home. Now, let me start to our new topic of biology, chapter number 7, that is control and coordination in living organisms. In the previous chapter of a life process, we just discussing about what are the life processes, how they can be implemented into the unicellular as well as the multicellular organisms, like if you take syntax like digestion, absorption, excretion, assimilation, movement, control and coordination, growth. These are the topics which is generally considered as a part of the life processes. Also we are discussing the different terms of unicellular organisms, multicellular organisms, how they can be respired, how they can be excretions, how this implementation is a part of the digestion process in their body. These are the topics that we are discussing into the chapter number 6 of life process. But today we start a new chapter which is chapter number 7 of control and coordination in living organisms. First of all, what do you mean by the coordination? First of all things, control it means what? Generally our body that can be easily control ourselves. You are falling down or we adjust yourself while you are moving onto the edges of walls. So these are generally part of the controlation. But what do you mean by coordination? Coordination in specifically form of living organism. If you see that in our body, different type of organs, organ systems, tissues and cells that have to be connected and do a specific work, having a specific formation of tissues. So different organs that work unitedly and simultaneously. Different type of organs in your body that work unitedly and simultaneously. And they give a proper response towards the specific stimulus. Stimulus is means like an external command which generally we provide from the outside, and according to that, different organs in your body that can be executed. So different organs work unitedly and systematically, and they give the proper response according to the stimulus of the external conditions what was given to the different organ. So this type of external commands or stimulus that is called as a coordination. It is a simple meaning that is called as a coordination. This is a simple definition about the coordination. So different type of organs in your body that works according to the simultaneously unitedly, and they respond according to the specific command of stimulus, and that stimulus is called as a coordination into the living organism. Now, this is the general definition about the coordination. But if you see that the coordinations and the control in the plants and animals have a different, like we comparison to the animals and plant structures. So control and coordination action in a plants and maybe in animals, they have a different scenarios. For example, if we discussing about the animals having a specific tissue that is called nervous tissues as well as to the endocrines. These are the systems which helps for the coordination to the various activities in their body, like nervous tissues and the endocrine tissues. These are the tissues which generally helps the animals to control and coordination to the various activities in their body. But according to the plants do not have any nervous tissues because it's only use the hormones, because there is no any nervous tissues for the controlation and coordination to the plants. Say most of it they use the they use the hormones. So animals having a nervous tissue and endocrine system which generally helps to control and coordinate, while in the plants have specific forms of hormones because they do not have the nervous tissue. So control and coordination section that can be different to the animals and plants. Let us start discussing about the control and coordination in specific form of plants. Plants कैसे control and coordination होता है? So in a plants, control and coordination that can be done through the hormones. Hormones के through ही होता है. Hormones are responsible for the control and coordination into the plants. तो plants के ऐसे दो तरीके के hormones होते हैं. Plants that include two types of hormones. एक जो होता है उसको कहते हैं growth promoting hormones और दूसरा होता है उसको कहते हैं growth inhibiting hormones. एक growth को promote करने वाला hormones होता है और दूसरा growth inhibiting hormones. These are the two types of hormones that can be generally seen into the plants, which is generally responsible to the control and coordination of entire activities into the plants.
which is called growth promoting hormones and growth inhibiting hormones. ये दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं. First we discussing about the growth promoting hormones. Growth promoting hormones क्या है? तो growth promoting hormones के अंदर आप देखिए जैसे ऑक्सिन्स है, गैब्रेलियंस है, उसके अलावा साइटोकाइन्स है, ये सारे जो फॉर्मेशंस होते हैं इसको ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स कहते हैं प्लांट के अंदर. उसी तरह ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स के अंदर आप देखिए तो जैसे एब्सिसिक एसिड है, उसके अलावा इथालाइन है, ऐसे अलग अलग तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम ग्रोथ इनहिबिटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं प्लांट्स के अंदर. दिस आर द हार्मोन्स व्हिच जनरली कॉल्ड एज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स. ये दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं. तब इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए एक वर्ड मैंने यूज किया था. कोऑर्डिनेशन जनरली a part of the stimulus. What are the stimulus which generally receives the body and according to that it respond, that is called the stimulus. उसको हम stimulus कहते हैं, हमने आपको पहले भी बताया. So in a plant like formation of the external stimulus that is responsible for movement in the plants. तो ऐसे दो तरीके के स्टिमुलस होते हैं जो प्लांट्स के अंदर एक्सटर्नली कमांड करते हैं, उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं. उसको हम कहते हैं ट्रॉपिज्म और दूसरे को कहते हैं नास्टिज्म. These are the two external stimuli which is responsible for plants into their movement, that is generally called as a stimulus or the external command. According to that plants that can be respond and they can be move and coordinate their entire activities. उसमें दो चीज आती है, एक होता है ट्रॉपिज्म और एक होता है नास्टिज्म. These are the two things. और फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रॉपिज्म. ट्रॉपिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ट्रॉपिज्म क्या है, कैसे वर्क होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है ट्रॉपिज्म्स में, वो हम डिस्कशन करते हैं. पहले ट्रॉपिज्म फिर नास्टिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो ट्रॉपिज्म्स के अगर आप देखिए तो ट्रॉपिज्म्स क्या है, कैसे वर्क करता है. ट्रॉपिज्म इज अ वन काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुली. इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टिमुलेंट व्हिच इज द एक्सटर्नल कमांड. अकॉर्डिंग टू दैट प्लांट हैव वर्क देयर डिफरेंट एक्टिविटीज. So if the movement of the curvature in a plant organ and that is generally induced by the external and the directional stimuli, then it is called as a tropism. Tropism क्या है? If the movement of the curvature of plant के curvature का जो movement होता है, उसका जो plant organ का जो movement होता है, which generally induced by the external direction of stimuli. एक्सटर्नल डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलेट के अकॉर्डिंग टू प्लांट के ऑर्गन्स अगर मूव करते हैं तो इसको आप क्या कहेंगे, ट्रॉपिज्म्स कहेंगे. फिर से एक बार ट्रॉपिज्म की डेफिनेशन बोलता हूं. इफ द मूवमेंट ऑफ द कर्वेचर इनटू द प्लांट ऑर्गन दैट जनरली इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल कमांड ऑफ द स्टिमुली, देन दिस टाइप ऑफ द स्टिमुली इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिज्म. अगर एक्सटर्नल कमांड के थ्रू अगर प्लांट के ऑर्गन्स अगर उसके अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको आप ट्रॉपिज्म्स कहते हो. इसमें दो तरीके के ट्रॉपिज्म्स होते हैं. एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म. वन इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, अनदर इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव ट्रॉपिज्म. तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या है और नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या है? सो इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. अगर जिस डायरेक्शन के अंदर से कमांड आ रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर अगर प्लांट के ऑर्गन का ग्रोथ अगर हो रहा है तो आप उसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म्स कहेंगे. अगर उस डायरेक्शन के अंदर प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, उससे बाय डायरेक्शनल में अगर वो मूव करता है तो उसको आप नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे. दिस आर द टू टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म. वन इज कॉल्ड जियो, वन इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, वन इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म. So according to the part of the tropism, there are generally 5 type of stimuli that according to that plant organ that can be moved. ऐसे 5 अलग-अलग तरीके के स्टिमुलस है जिसके थ्रू प्लांट के ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं. जिसमें पहला फोटोट्रॉपिज्म आता है. उसके अलावा देखें तो इसमें अगर इम्प्लीमेंटेशन ले तो कौन से सब 5 स्टिमुलस है. एक लाइट आती है, वन इज द लाइट, वन इज द ग्रेविटी, वन इज द केमिकल, वन इज द वाटर, वन इज द टच. Light, gravity, chemical, water and touch. These are the 5 types of the external stimuli according to that plant organ that can be respond. Okay, so light as well as the gravity, chemical, water and touch. अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट ट्रॉपिज्म दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म किसको कहते हैं? तो फोटोट्रॉपिज्म के अंदर आप देखिए तो the movement of plant it generally having to respond to the light is called phototropism. अगर प्लांट की ऑर्गन का मूवमेंट थ्रू द लाइट स्टिमुलिटी के थ्रू होता है तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं. जैसे आप देखिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो लीव्स होते हैं या स्टीम्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग टू वर्क करते हैं, क्लोरोफिल जनरेट करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू CO2 वाटर का
को एब्जॉर्ब करते हैं और वो फूड को प्रिपेयर करते हैं. So if the movement of plant organ in the response of the stimuli of the light, then it is called phototropism. तब आप उसको क्या कहेंगे? Phototropism कहेंगे. और जैसे आप देखेंगे stems and leaves which use the light energy to the photosynthesis process, while the root doesn't use the light energy, it shows the negative tropism. तो लाइट एनर्जी के लिए पॉजिटिव ट्रॉपिज्म्स क्या होंगे? स्टीम्स और लीव्स होंगे, और रूट उसके लिए नेगेटिव ट्रॉपिज्म होंगे, क्योंकि रूट जो है वो लाइट का यूज नहीं करता है. So if the plant organ that can respond to the specific stimuli, then it is called tropism. जिसमें phototropism that can be implemented with the stimuli of light, इसमें leaves that shows the positive tropism, while the roots it shows the negative tropism. उसके बाद दूसरा आता है geotropism. Geotropism generally the movement of plant that generally according to the specific stimuli that is called gravity. अगर प्लांट के ऑर्गन का मूवमेंट अगर ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है तो द ग्रेविटेशन फोर्स, तो वैसे फॉर्मेशंस को आप क्या कहोगे? जियोट्रॉपिज्म्स कहोगे. तो स्टीम्स जो होते हैं, स्टीम्स डजंट यूज द ग्रेविटी, इट ऑलवेज इज फॉर द नेगेटिव ट्रॉपिज्म, बट रूट ऑलवेज विल मूव इनटू द ग्रेविटेशन फोर्स इनटू द डाउनवर्ड साइड, इट ऑलवेज विल शो द पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. तो जियोट्रॉपिज्म्स के लिए रूट जो होते हैं इट शोज द पॉजिटिव ट्रॉपिज्म्स, जबकि स्टीम्स और लीव्स दैट शोज द नेगेटिव ट्रॉपिज्म. तो जियोट्रॉपिज्म कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. थर्ड इज कॉल्ड कैमोट्रॉपिज्म. नाउ कैमोट्रॉपिज्म इज दैट काइंड ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट व्हिच जनरली हैविंग टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द स्पेसिफिक स्टिमुलस दैट इज कॉल्ड केमिकल. अगर प्लांट के ऑर्गन का मूवमेंट स्पेसिफिक स्टिमुलस ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू होता है तो आप उसको कैमोट्रॉपिज्म कहते हो. अभी केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू कौन से ऐसे ऑर्गन है जिसमें प्लांट्स का मूवमेंट होता है? That is called growth of the pollen tubes. Growth of the pollen tubes which generally towards moving onto the ovule during the process of fertilization. That is the one part of the chemotropism. क्योंकि वहाँ पे chemical substances fertilize होते हैं और उसके बाद क्या होता है? ovule और ovule जो sections बनते हैं ovary का वो formation वहाँ पे generate होता है. So that is generally called as a chemotropism, which generally growth of the plant in response to the chemical. Third होता है hydrotropism. उसके बाद जो है next वो है hydrotropism. So growth of the plant that responds to the water, then it is called hydrotropism. क्योंकि हाइड्रो का जो मीनिंग है that is a specific form of the water. तो अगर प्लांट के ऑर्गन का मूवमेंट अगर वाटर के रिस्पांस के थ्रू अगर होता है तो आप उसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हो. जिसमें आप देखिए तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स जनरली हैविंग अ पॉजिटिव ट्रोपिज्म एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि रूट जो है वो वाटर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है थिग्मोट्रोपिज्म. So the movement of the plant organ that is induced by the specific stimuli that is called touch. अगर टच के थ्रू प्लांट के मूवमेंट के अंदर अगर ऑर्गन्स के अंदर किसी भी तरह के मूवमेंट को जनरेट करता है तो उसको आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर जैसे देखो टेंड्रिल्स के प्लांट्स हैं. टेंड्रिल्स के प्लांट्स को जैसे आप टच करते हो पूरे के पूरे टेंड्रिल्स के प्लांट्स का जो कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द थिग्मोट्रोपिज्म जो टच के थ्रू मूव करता है. तो दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रोपिज्म जिसमें पॉजिटिव ट्रोपिज्म्स आता है, नेगेटिव ट्रोपिज्म्स आते हैं. 5 अलग-अलग तरह के स्टिमुलेटी आते हैं जिसमें लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एंड टच. दीस आर द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टिमुलेट. उसके अकॉर्डिंग टू आप देखिए तो फोटोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म है, कैमोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म. ठीक है, तो ट्रोपिज्म्स का पहला टॉपिक जो है आपका ओवर होता है. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द नेस्टिज्म्स. नेक्स्ट जो स्टिमुलेटी होती है प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं स्टिमुलस के बाद जो नया कॉस्ट आता है उसको कहते हैं नेस्टिज्म. तो ट्रोपिज्म और नेस्टिज्म में क्या डिफरेंस है? ट्रोपिज्म भी एक्सटर्नल स्टिमुलेटी के थ्रू वर्क करता है. नेस्टिज्म आल्सो वर्क इनटू द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द स्टिमुलेटी, वो भी एक्सटर्नल स्टिमुलेटी के थ्रू ही काम करता है. तो दोनों के अंदर ऐसे क्या डिफरेंशिएशन जनरेटेड होते हैं, दोनों के अंदर कैसे इस तरह के वर्क होते हैं. तो अगर हम स्टिमुलस की बात करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द स्टिमुलस एज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ प्लांट जो नेस्टिज्म है. So नेस्टिज्म के अंदर आप देखिए तो the kind of movement depends on to the presence and the intensity of the external stimuli. यहाँ पे external stimuli के थ्रू वर्क करते हैं, but नेस्टिज्म is that kind of the movement which depends on to the presence and the intensity of the stimulus. जो स्टिमुलस आप एक्सटर्नल कमांड प्रोवाइड करते हैं उस एक्सटर्नल कमांड का प्रेजेंस अगर एटमॉस्फेयर में है, उसकी इंटेंसिटी अगर एटमॉस्फेयर में है, तभी इस तरह के प्लांट का जो ऑर्गन है उसका मूवमेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर अगर होता है तो आप उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेस्टिज्म. तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक डायरेक्शंस ऑफ द
stimulus depends on to the intensity and the presence of the external stimuli then the movement of plant that is called as a nastism. उसको आप nastisms कहोगे। और nastisms के अंदर भी तीन तरह के nastisms आते हैं। One is called photonasty, second is called thermonasty, third is called thigmonasty। तीन अलग-अलग तरीके के nastisms देखने को मिलते हैं, thermonasty, photonasty and thigmonasty। पहले हम डिस्कशन करते हैं फोटोनेस्टी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय द फोटोनेस्टी? अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि फोटोनेस्टी जनरली प्लांट का मूवमेंट, अभी आपने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में डिस्कशन किया, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन दैट रिस्पॉन्ड टू द लाइट, आप उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। बट अगर आप देखिए फोटोनेस्टी के अंदर द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट देन इट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। अगर प्लांट के ऑर्गन का रिस्पॉन्स अगर आप देखिए तो वो लाइट के थ्रू अगर होता है तो उसको आप फोटोनेस्टी कहते हो, जिसमें लाइट की प्रेजेंस और इंटेंसिटी एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए। जैसे आप देखिए फ्लावर ऑफ लोटस या फिर सनफ्लावर, दिस ओपन्स इनटू द मॉर्निंग व्हेन द लाइट ऑफ सन एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो उसकी इंटेंसिटी अगर एटमॉस्फेयर में है और उसके अकॉर्डिंग टू वे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो आप उसको फोटोनेस्टी कहते हो। जैसे सनफ्लावर है, जब तक लाइट की इंटेंसिटी इधर उधर मूव करेगा, लोटस भी जैसे सनलाइट आएगा तभी वो ग्रो करेगा। So these are generally show the intensity of light which present into the atmosphere which gives the external stimuli to the plant and according to the movement of organ of plant that can be depend on to that intensity then it is called photonesty। दूसरा है जो हम thermonesty कहते हैं। Thermonesty यानी आपका एक वर्ड implementation of the thermo is a part of the heat energy। तो अगर आप देखिए तो मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द हीट के अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है, ज़्यादा हीट है और उसके थ्रू प्लांट के ऑर्गन अगर मूव करते हैं तो उसको आप थर्मोनेस्टी कहते हो। जैसे आप ट्यूलिप्स के प्लांट से या फिर जैसे क्रोकस के प्लांट से, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं ज़्यादा हीट होता है तभी वो स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर ही ग्रो करते हैं, तो आप ऐसे प्लांट्स के ऑर्गन को थर्मोनेस्टी में कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा जो आता है उसको थिग्मोनेस्टी कहते हैं। थिग्मोनेस्टी यानी कि आपको एक बताया कि इट इज अ बेसिक मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिस्पॉन्ड टू द टच। अगर प्लांट के ऑर्गन का रिस्पॉन्स थ्रू द टच अगर होता है तो आप उसको क्या कहते हो? थिग्मोनेस्टी कहते हो। और थिग्मोनेस्टी के अंदर इसमें जो प्लांट्स होते हैं, जैसे आप देखिए माइमोजास के प्लांट्स, द प्लांट्स ऑफ माइमोजास दैट जनरली हैविंग टू बी प्लांट इज कॉज्ड बाय द टच इनटू द माइमोजा। उसके पूरे के पूरे जो लीव्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, वो होता है ड्यू टू द टच। अब ये कैसे क्यों होता है? माइमोजा प्लांट के अंदर कैसे होता है? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। So when we love generally touch this type of the mimosa's leaves, mimosa's plant के leaves को जैसे आप touch करते हो with your fingers, so leaves that respond to the specific type of the chemical signal, उसके अंदर क्या होता है? प्लांट के पूरे फोल्ड अप हो जाते हैं। तो जैसे आप mimosa plants के leaves को touch करते हो पूरे के उसके जो leaves होते हैं वो फोल्ड अप हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? So in this type of plant, when you touch with your fingers, it generally gives the stimulus, एक एक्सटर्नल कमांड देता है जिसके वजह से लीव्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा फोल्डिंग अप हो जाते हैं। इसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन आता है, सिग्नल जनरेट हो रहा है, उसके थ्रू पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट हुआ है। तो ये क्या होता है कि these are the sensitive plants, mimosa plants are very sensitive plants and which possesses a very soft leaf like a puzzle like swollen structure that can feed the pulvinus। जैसे आप उसको टच करोगे तो जैसे पुजन कैसे स्वोलन हो जाता है वैसा स्वोलन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको पल्विनस कहते हैं, PULVINUS, पल्विनस। अब इस पल्विनस स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल्स ऑफ पल्विनस दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, इसके अंदर बहुत तरह के वाटर्स कंटेन होते हैं, लॉट्स ऑफ वाटर दैट कैन बी कंटेन इन द पल्विनस सेल। सो व्हेन वी हैव टू टच this type of pulvinous cells and which touch with the fingers that generally create the external stimulity of the electrical impulse, which generate the signal of electrical impulse and the intercellular space of that connect this type of the signals and migrate the water loss and it convert into the part of the fold up, इसलिए वो तुरंत fold up हो जाते हैं। All this type of pulvinus which is located into the fitness and call as fold up, पूरे के पूरे वहाँ से सिकुड़ जाते हैं। जैसे एनिमल्स प्लांट के अंदर आप देखो तो लाइक into the animals plant a specialized type of nerve tissues having into the each and every animal we generally have to coordinate this electric impulse। तो एनिमल्स के अंदर इस तरह के इलेक्ट्रिक इंपल्स जो नर्व टिश्यूज होते हैं वो कंडक्ट करते हैं और इसके थ्रू पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन वर्क करता है। प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, प्लांट्स ऐसे सेंसिटिव सेल्स से वर्क करते हैं जिसमें वो अमाउंट ऑफ वाटर को लॉस एब्जॉर्ब करके अपने सेल का शेप और साइज को
चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो these are the topics which include into the coordination in the plants. So I hope कि आज का जो सेशन है जिसमें हमने डिस्कशन किया कि what is coordination, what is coordination that can be seen in the animals and plants, how the coordination that can be done into the plants, जिसमें दो तरीके के वर्क्स हमने इंप्लीमेंटेशन किए कि प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स के थ्रू पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स आते हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन किया स्टिमुलस जो एक्सटर्नल कमांड होता है, उसमें दो तरीके के स्टिमुलस होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं मूव करते हैं, वन इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म्स और एक होता है नेस्टिज्म्स। ट्रॉपिज्म्स के अंदर भी आपको 5 अलग-अलग तरीके के ट्रॉपिज्म्स पढ़ा है, इसमें फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म और उसके अलावा थिर्मोट्रॉपिज्म और हेटेरोट्रॉपिज्म आता है। उसके बाद नेस्टिज्म्स में भी आपने पढ़ा, नेस्टिज्म में भी फोटोनेस्टी, थर्मोनेस्टी और थिकोनेस्टी आता है, ठीक है। तो आई होप कि फॉर द टुडे सेशंस अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट दैट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय यू स्टूडेंट्स। सो लेट मी मीट टुमारो विद अनदर टॉपिक of the coordination into the animals or maybe into the humans. These are the very important topics for us into the examination. तो आई होप कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, रिवाइज कीजिए इस टॉपिक्स को और राइट टू आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एंड आल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर इन यूजिंग द डिजिटल मीडियम्स, improve your knowledges. Students, take care. We'll meet you tomorrow with another topic of coordination into the humans. Take care and bye.